Hello and good afternoon. I hope you are good and you people are doing well. चलो. So आज की क्लास में what we are going to do, first we will start with the revision. क्या हमने कल के क्लास में पढ़ा था और उसके बाद मेजरली आज की क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सिंपल माइक्रोस्कोप आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो एक्सटेंसिवली आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. ठीक है. These are very important from the point of view of your exams and also like which exam NEET G and also from the point of view of your board. ठीक है. So चलो what we studied, सबसे पहले कल के क्लास में हमने पढ़ा था combination of thin lenses if you remember. So combination of thin lenses में क्या पढ़ा था हमने, वहां हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास लेंस है, एक लेंस है, दूसरा है and all these lenses are thin lenses. Okay. So and in contact another lens may be what sort of lens, another lens may be concave lens, convex lens, means if there are more than one lenses in contact, ठीक है, different kind of or same kind of, तो इस combination का जो focal length होगा, ठीक है, वो क्या होगा सबसे पहले. सो इफ दिस लेंस हैज a focal length of f1, this lens has a focal length of f2 and this lens has a focal length of f3, then focal length of this whole combination, that is 1 by f net, is equal to how much? 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. And this is true for thin lenses. Like these lenses need to be thin, right? Thin का मतलब लेंस जो है उसका ये डायमेंशन काफी कम है, दैट इज थिन लेंस. सो और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लिखा था वो ये था कि while you are putting the value of f1 f2 and f3, यूज साइन कन्वेंशन, है ना. जैसे अगर हमारा कन्वेक्स लेंस है तो साइन कन्वेंशन क्या डालोगे? प्लस. और अगर हमारा कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ का वैल्यू कैसे डालोगे? नेगेटिव करके डालोगे. ठीक है. सो दिस इज जैसे इन दिस केस f1 पॉजिटिव होगा, f2 पॉजिटिव, f3 विल बी नेगेटिव. डन. दूसरी चीज जो हमने पढ़ा था, देखो पावर क्या होता है? 1 बाई फोकल लेंथ. सो 1 बाई एफ नेट इज व्हाट? पी नेट. सो पी नेट इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3. डन. अगेन यहाँ भी जब हम लोग p1 का वैल्यू रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो अगेन वी नीड टू बी केयरफुल विथ साइन कन्वेंशन. अगर कन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव, अगर कनकेव लेंस है तो पावर नेगेटिव. सो विथ प्रॉपर साइन वी विल ऐड दिस थिंग. ओके. And the last thing that we discussed was net magnification. So net magnification in this case will be what? जैसे suppose कर लो यहाँ पे ऐसे लेंस, ये combination of these three lenses are kept. This is the principal axis and there is an object of some height h. Then so what will happen? Image will get formed by combination of these three lenses. So first lens will cause some magnification, second lens से कुछ magnification होगा, third से कुछ होगा. Done. So total magnification क्या होगा? Magnification by first into magnification by 2 into magnification by 3. Again, while you are calculating magnification, put it with proper sign. Then if it is real image is getting formed all the time, then what will be magnification sign? It will be positive. And if virtual image is getting formed, sorry, if real image is getting formed, then magnification, जैसे magnification का formula for lens क्या होता है? Height of image by height of object या v by u. So if real image is getting formed, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर image real बनता है तो magnification क्या होता है? Magnification होता है तुम्हारा negative. And if image getting formed is virtual image, then in that case magnification क्या होता है? Positive. तो दिस इज ऑल डन. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप. ठीक है. सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था? सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वेक्स लेंस होगा, सिंपल, जो मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. और इसका काम क्या है? चीजों को मैग्नीफाई करके देगा डेफिनेटली. सो सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ व्हाट? consist of convex lens. It is nothing but convex lens. So अगर convex lens है हमारे पास और अगर इसका
इसको अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह यूज करना है तो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग टू बी केप्ट इन माइंड इज कि जो ऑब्जेक्ट रखेंगे देखने के लिए, ठीक है, वो किस कहाँ रखेंगे। ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा, कल के क्लास में मैंने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है। ऑब्जेक्ट पोजीशन विल बी बिटवीन, फोकस और पोल के बीच में होगा, फोकस एंड पोल, या एक और ऑब्जेक्ट पोजीशन हो सकता है, पहला तो ये होगा, दूसरा क्या होगा, एट फोकस, ठीक है। क्योंकि फोकस और पोल के बीच में जब आप रखोगे तो हमारा इमेज कैसे बनेगा, हमारा इमेज जो बनेगा, इफ यू रिमेम्बर, सो आवर इमेज विल गेट फॉर्म्ड, विल बी वर्चुअल, ठीक है। सो मैग्निफाइड इमेज बनेगा इस केस में, और वर्चुअल, इरेक्ट, ऐसा। डन। सो यहाँ पर्सन है देखने वाला, इसको कैसा दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट छोटा नहीं दिखेगा। सपोज करो तुम एक छोटी सी राइटिंग देखनी है, दिख नहीं रहा नेकेड आई से, मैग्नीफाइंग ग्लास रखोगे, यानी कि कन्वेक्स लेंस रखोगे सामने, सच दैट जो लेटर है वो फोकस और पोल के बीच में फॉल कर रहा है, उसका इमेज बनेगा इतना बड़ा, और वो इमेज तुम्हारी आंखों तक दिखेगा, सो तुम देख पाओगे छोटी चीज को। डन। सो दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ओवर। फोकस पे रखने का क्या कॉन्सेप्ट है, फोकस पे हमने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इफ यू रिमेम्बर, उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है, कहीं बहुत दूर, और वो हाईली इनलार्ज्ड होता है। वो इमेज कैसा होता है, हाईली इनलार्ज्ड होता है। डन। सो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, इनलार्ज्ड इमेज मिलेगा। ओके। so that is why, so we will keep object close to focus, near about focus, such that it should fall between focus and pole or at focus. Done. हमने इसमें दो केस पढ़ा था, फर्स्ट था नियर पॉइंट केस, नियर पॉइंट केस हमारा क्या था, और दूसरा था हमारा क्या था, दूसरा एक था तुम्हारा, जैसे पहला केस मैं बताती हूँ, यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में, सच दैट जो इमेज बन रहा था वो कहाँ बना था, वो बना था, क्योंकि देखो कल मैंने एक चीज और डिस्कस की थी, नियर पॉइंट, हमारे हमारा जो आई है वो चीजों को देख पाए, उसके लिए ऑब्जेक्ट और आई के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से पहले है तो वो ब्लर्ड दिखेगा। जैसे अभी तुम एग्जाम्पल के लिए अपने बुक को हाथ में रखो, थोड़े डिस्टेंस पे रखोगे दिखेगा, बहुत पास कर लिए तो इमेजेस ब्लर्ड हो जाते हैं, नहीं दिखता। यानी कि आई से क्लियरली देख पाने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस है, एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो यस्टरडे आई डिस्कस दैट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कि अगर अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप को हम यूज कर रहे हैं, सो जो इमेज बन रहा है वो मिनिमम कहाँ बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे, दैट इज least distance of distinct vision पे बनना चाहिए, so that is near point case. Done. And in that case our magnification was how much, 1 plus d by f, इफ यू रिमेम्बर, एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सेकेंड केस में क्या था, सेकेंड केस में हमारा जो इमेज बन रहा था वो कहाँ बना था, इन्फिनिटी पे, ठीक है। सो दैट इज रिलैक्स्ड विजन, ठीक है। उस केस में मैंने डिस्कस भी किया था कि जो चीजें इन्फिनिटी पे होती है उसका देखना काफी आसान होता है, आंखों पे स्ट्रेस नहीं होता है, सो दैट इज रिलैक्स्ड विजन। और वहां पे हमारा मैग्निफिकेशन कितना था, डी बाई एफ। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि दोनों में मैग्निफिकेशन का 1 का डिफरेंस है, बट this we will go for when we don't want stress in our eyes, and this we will go for when we want more magnification at any cost, right? So that is it. Now आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले I thought to give you one question, so take 1 minute and let me know the answer. Okay, चलो आंसर बताओ क्या आता है।
ओके, सो व्हाट द क्वेश्चन इज कि एक पर्सन है जो कि क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। तो ये आई ले लो, आई भी क्या होता है, एक लेंस की तरह है, तो ये लेंस ले लो। यहां से ऑब्जेक्ट जब 50 और 400 के बीच में है, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी कि अगर वो 50 से ज्यादा क्लोज हुआ तो भी नहीं देख पाएंगे, और अगर वो 400 से दूर हुआ तो भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 50 सेंटीमीटर, और हाईएस्ट डिस्टेंस जहां तक होना चाहिए देखने के लिए वो कितना है, 400। डन। सो यानी कि अगर मैं हूं, अगर मेरी आंख है ये, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नजदीक की बहुत 25 सेंटीमीटर की चीजें नहीं दिखेगी, मेरे आई में डिफेक्ट है, मुझे 50 तक उसको ले जाना पड़ेगा। और मुझे इन्फिनिटी की चीजें नहीं दिखेंगी, बहुत दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, ओनली 400 सेंटीमीटर दूर तक की चीजें दिखेंगी। ठीक है, सो मेरे आई में मेजर प्रॉब्लम है। डन। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इन्फिनिटी, और मैं डॉक्टर के पास गई, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है डिस्टिंक्ट विजन का, वो 400 ना होकर इन्फिनिटी हो, यानी कि मैं इन्फिनिटी की चीजों को भी देख पाऊं। इसके लिए किस तरह का लेंस मुझे वो बताएगा, दैट्स द क्वेश्चन। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो जो पर्सन, जब मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास तो वो मुझे ऐसा स्पेक्स देगा, ऐसा लेंस देगा, वो ऐसा लेंस देगा कि जो चीजें इन्फिनिटी पे है, यानी कि जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है मेरी आंखों, मेरे स्पेक्स तक, वो लाइट तुम्हारा क्या करेगा, जैसे ये लेंस तो हम यूज कर नहीं सकते, ये हमें कैलकुलेशन से भी पता चल जाएगा बाद में। उससे पहले मैं काम करती हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे देखो मैं कनकेव लेंस ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ, दैट इट विल गेट क्लियर लेटर। सो यहाँ पे देखो, अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है, तो इंफिनिटी से आते हुए लाइट, ये मेरा स्पेक्स है, ठीक है, और इसके इधर मेरा क्या है, आई है। डन। सो इन्फिनिटी से अगर डायरेक्टली मैं इन्फिनिटी की चीज को देखूं तो मैं नहीं देख पाऊंगी, है ना, क्योंकि मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, 400। लेकिन मैं स्पेक्स के थ्रू देख रही हूँ, तो स्पेक्स क्या, इसको क्या करना चाहिए, इसको करना ये चाहिए कि जो मैक्सिमम जो ये लाइट इंफिनिटी से आया, उसको ये कन्वर्ज कर दे कितने डिस्टेंस पे, 400 पे, सो दैट कि जब ये लाइट स्पेक्स से क्रॉस करके मेरी आंखों तक लाइट जाए, तो वो लाइट कहां से आता हुआ दिखे, 400 सेंटीमीटर। अब हम देख पाएंगे, है ना। सो दिस इज माय स्पेक्स, स्पेक्स ने क्या किया, इंफिनिटी के चीजों को कहां पे लाकर रख दिया, 400 पे। अब मेरी आई कंफर्टेबली उसको देख पाएगी। सो क्या करना होगा, ये जो मेरा जो स्पेक्स होगा, जो लेंस होगा, जो एक्स्ट्रा लेंस यूज करेंगे, वो इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाना चाहिए उसको, 400 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी फॉर दिस लेंस एंड इमेज डिस्टेंस फॉर दिस लेंस इज 4 मीटर। ठीक है, सो वी नीड टू कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। अब आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करके देखो। सो 1/v minus 1/u equal to 1/f. 1/v, v should be get formed here this side only, that is why I use concave lens. ठीक है, सो यहाँ पे देखो 4 मीटर है, 1/-4 minus 1/infinity 1/f. f कितना होगा, that we have to calculate. So f equal to minus that is here 1/f is 1/4. Done. So that is your 400 centimeter. That is how much? अच्छा, पावर पूछा है। So power will be what? Power will be minus 1/4. So power is minus of 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.25 आएगा। So this much power. ठीक है, सो अगर ये जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये कनकेव लेंस होगा। अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है कौन सा लेंस होगा, स्टिल क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि हमसे पूछा है कि कैसा लेंस यूज करें कि हमारा जो इमेज है वो
सॉरी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी पे। ओरिजिनली कहाँ है, 400 पे, करना कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग एक ऐसा लेंस लेंगे जो कि इन्फिनिटी के चीजों का इमेज कहाँ बना दे, 400 पे। सिंपल। सो तुम्हें लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस 400 सेम साइड पे लेना है। सो यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, एंड दैट इज ओनली द केस विद कनकेव लेंस, राइट? सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग concave lens here. ठीक है, so correct answer is B. Now we are going to read compound microscope, what it is. अब देखो कंपाउंड, कल भी मैंने बोला था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो लेंसेस होते हैं। एक होता है आईपीस, सॉरी एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस जिसके आगे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा होगा आईपीस, यानी कि जिसके पास हमारा आई होगा। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखते हो तो एक लेंस से हमारा आई क्लोज होता है और दूसरे लेंस से हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो क्लोज होता है। सो जो ऑब्जेक्ट से क्लोज है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आई से क्लोज है दैट इज आई पीस। ठीक है, so this is your eyepiece. Now I asked one question yesterday and that was कि ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर छोटा क्यों होता है आईपीस से। ठीक है, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नाम से ही क्लियर है, हम इससे कैसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट, जैसे स्टोमाटा देखते हैं, लीव्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसको देखते हैं, काफी छोटी छोटी चीजों को देखते हैं, क्लोरोफिल्स को देखते हैं, है ना। सो हम बहुत ही छोटी चीज को देख रहे हैं, और अगर यहाँ पे एक बहुत, जैसे ये तो एग्जैजरेट करके ऑब्जेक्ट को ए बी हाइट का दिखाया है, इतना बड़ा होता नहीं, दिस इज जस्ट द एग्जैजरेशन, राइट? Otherwise, in reality, object is what? Very small, like a dot, small dot. So from this small dot, what will happen? Light will come out like this. So मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को बनाती हूँ, ठीक है, और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है बहुत ही छोटा सा, इससे लाइट ऐसे फॉल करेंगे, और फॉल करने के बाद इस छोटे से का एक इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, दैट विल हैपन, राइट? सो ऐसा हो रहा है, डन। अब ये छोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि देख लो अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा, इससे जो भी लाइट आ रही है ना वो ज्यादा एरिया में स्प्रेड कर जाएगा। सपोज क्योंकि ये बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, इससे जो नंबर ऑफ रेज निकल रहे हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि देखो सन का साइज जितना ज्यादा होगा उतने नंबर्स ऑफ रेज उससे निकलेंगे। कोई चीज बहुत, जैसे छोटा बल्ब जो है वो रूम को क्या करता है, लेस ग्लो, लेस लाइटन अप करता है, राइट? बड़ा बल्ब होगा तो क्या होगा, सॉरी मैंने बॉल बोला, बड़ा बल्ब जो होगा उससे रूम क्या होगा, ज्यादा लाइटन अप होगा। डन, सेम इज हियर। सो दिस इज अ स्मॉल मास, इससे रेज ऑफ लाइट कम निकल रहे हैं, सपोज कर लो 50 निकल रहे, ठीक है। सो इनिशियली जब अपर्चर छोटा था, तो इससे 50 गए और ऐसे इमेज बना। ठीक है, अब देखो जितना बड़ा अपर्चर लोगे ये 50 रेज उतना ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा, है तो 50 ही, अब इसके लिए और बड़ा ले लिए तो 1 2 3 4 रेज मैंने दिखाया, अब उतने बड़े से 4 रेज जाएगा तो स्प्रेडिंग ज्यादा होगा, समझ रहे हो ना? इसका अपर्चर छोटा होगा, स्प्रेडिंग लाइट का क्या होगा, कम होगा, और जब स्प्रेडिंग कम होगा ना तब इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि ज्यादा स्प्रेड हो गया तो लाइट इन्वायरमेंट में, एटमोस्फेयर में वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा। ठीक है, सो अपर्चर छोटा होना चाहिए सो दैट, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्ट से लाइट्स आ रहे हैं वो एक जगह पे ज्यादा कंसंट्रेट हो पाए, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बने वो क्या हो, ब्राइट हो। दैट इज व्हाई वी टेक aperture of objective lens to be small to stop the spreading of light much. ठीक है, so that's the reason. Now what we need to do, we need to calculate magnification here. Simple microscope के लिए हमने magnification निकाला था, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हुआ है तो मैग्निफिकेशन था कितना, d/f। अगर इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था तो हमारा मैग्निफिकेशन था 1 + d/f। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 लेंस करेगा। सो मैग्निफिकेशन निकालेंगे हम लोग फर्स्ट लेंस के थ्रू M1 सपोज, देन वी विल सी कि सेकंड लेंस कितना मैग्निफिकेशन कर रहा है, सपोज M2, टोटल मैग्निफिकेशन M1 × M2 एज वी हैव सीन अर्लियर, राइट? सो चलो देखते हैं।
अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमें दोनों ही लेंस से मैग्निफिकेशन लेना है, ठीक है, सच दैट पहले लेंस से इमेज जो बनना चाहिए वो रियल बनना चाहिए, क्योंकि अगर रियल इमेज नहीं बनेगा, अगर वर्चुअल इमेज बन गया, तो तुम्हारा जो रे ऑफ लाइट है वो सेकेंड लेंस पे फॉल नहीं कर पाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। सो इमेज फर्स्ट लेंस से क्या बनना है, रियल बनना है, डन। और कन्वेक्स लेंस से रियल मैग्निफाइड इमेज कब बनता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट फोकस के पास जाता है, जैसे जैसे ये पास होने लगेगा, मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। यानी कि सी और एफ के बीच में भी इस तरह से रखना है कि वो इफ नॉट से काफी ज्यादा क्या हो, क्लोज हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट विल बी लाइक दैट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब क्या होगा, इस ये सपोज कर लो यू नॉट डिस्टेंस पे लिया गया, सो इमेज विल गेट फॉर्म्ड हियर, यहाँ पे इमेज बना। So this is the image getting formed by which lens? Objective lens. So magnification by objective lens क्या लिखोगे? Magnification क्या होता है? और image distance by object distance with proper sign convention. So image distance is V naught, sign convention plus होगा. Image distance will be minus U naught. So magnification of objective lens is this. Now light will, this light getting bent or getting refracted by objective lens will also fall on the eyepiece. eyepiece से ये image कितने distance पे है, UE, that is this will become object for the eyepiece, so that is why notation UE. अब देखो लाइट फॉल करेगा ऐसे, ये जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट से अब लाइट किस पे फॉल करेगा, आईपीस पे, और आईपीस इसका फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा, ठीक है। सो टू मेक इट वेरी सिंपल आई टेल यू, ये जो आईपीस है ना वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये किसकी तरह फंक्शन करेगा, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दे दिया आईपीस को, अब आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करके उसको और मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस क्या होगा, अगर अगर ये इमेज बन रहा है सर्टेन डिस्टेंस सपोज कर लो VE पे बना, यहाँ पे इमेज बना, वर्चुअल इमेज बन रहा है, तभी ये आई देख पाएगा, है ना। सो सपोज कर लो ये इमेज डिस्टेंस VE है, डन। सो VE बाई UE, डन। माइनस साइन दोनों में यूज करोगे, इसलिए माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस बचेगा। सो मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव इज दिस, मैग्निफिकेशन बाय आईपीस इज दिस। टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस को लिखूं तो कितना आया था, V नॉट बाई माइनस U नॉट, मैंने यही लिखा था ना, यस। सो दैट इज दिस। नाउ मैग्निफिकेशन बाय आईपीस कितना होगा, देखो V बाई UE हुआ, टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो दोनों को मल्टीप्लाई कर, सिंपल। सो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, उससे तुम लेंस फॉर्मूला यूज करके V नॉट निकाल लो, V नॉट पता है तो ज्योमेट्री जो भी चीजें इंफॉर्मेशन दी होगी उसे UE निकालोगे, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाओगे और V निकाल लोगे एंड यू विल कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, ठीक है। बट क्वेश्चन लार्जली कम फ्रॉम टू केसेस। केसेस क्या होंगे, व्हेन द इमेज इज एट इंफिनिटी। आई टोल्ड यू अर्लियर कि आईपीस को किसकी तरह यूज करना है, किसकी तरह ट्रीट करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। अब देखो जो भी केसेस हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव को हमेशा हमें लेंस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट करना है। यानी कि यू नॉट गिवन होगा तो V नॉट निकालना है, या V नॉट गिवन है तो U नॉट निकाल लेंगे और M नॉट को निकालेंगे। सो M नॉट तुम्हें हमेशा ही गिवन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है, लेकिन जो ME होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन केसेस, और इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला बस याद रखना है। सो if the final image is getting formed at infinity, then तुम्हें याद होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में अगर इंफिनिटी पे बनता है तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता था, D/F, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कौन बिहेव कर रहा है, आईपीस। सो मैग्निफिकेशन बाय आईपीस को क्या लिखोगे, D/फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है।
So when image is at infinity, finally, sorry, सो यहाँ पे मुझे पूरा फॉर्मूला लिख लेने दो. सो नेट मैग्निफिकेशन में क्या लिखूंगी? एम नॉट इंटू एम ई. एम नॉट क्या है? सिंपल, वो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा विथ माइनस साइन इंटू एम ई. ये पॉजिटिव साइन के साथ था. सो डी बाई एफ ई. यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना. केस बस देखो, फाइनली इंफिनिटी पे बन रहा है तो ऐसे पुट कर दो. ठीक है. केस 2, when image is at near point. So magnification by objective क्या होगा? Again same, V naught by U naught with minus sign. Magnification by eyepiece क्या होगा? 1 plus D by FE. क्योंकि it is acting as a simple microscope, and for simple microscope, when image is at near point, magnification is this. So total magnification क्या लिखोगे? M net minus V naught by U naught into 1 plus D by FE. और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है तो सिंपल है, फिर यू ई निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा और वैल्यूज को पुट करने पड़ेंगे, जैसे हमने जनरल केस पहले पढ़ा. ठीक है. दैट वी नीड टू डू. नाउ यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या क्या होता है साइन में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो मैग्निफिकेशन आ रहा है उसका साइन क्या होगा. तो देखो, ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन कैसा दे रहा है? ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन नेगेटिव दे रहा है. आईपीस मैग्निफिकेशन कैसा दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है. सो टोटल मैग्निफिकेशन एम नॉट इंटू एम ई क्या होगा? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव. सो टोटल मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव. जस्ट रिमेंबर दिस. ऐसे भी देख लो, ऑब्जेक्ट क्या है? अबव प्रिंसिपल एक्सिस ए बी. फाइनल इमेज क्या है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. सो फाइनल लाइक टोटल मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे? फाइनल इमेज का हाइट बाई इनिशियल ऑब्जेक्ट हाइट. So hi is what? Negative. H naught is what? Positive. So total magnification is what? Negative, right? So I said if no cases are given, then this formula you write. मतलब simple, तुम्हें thin lens formula use करना है और values निकाल के put करने हैं. But if cases are given, you just need to put the values. Okay. I hope it is clear. चलो, ये मैंने डिस्कस भी कर दिया. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सैटरडे की क्लास में करेंगे. ठीक है. सो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है यार, हमें सिंपल फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग द आंसर टाइप है, इसलिए मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है. चलो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं. टेलीस्कोप का काम क्या है? कितना अच्छा होता है, हमारे कमरे में एक टेलीस्कोप होता, रात में बैठकर हम चांद को, तार जो स्टार्स होते हैं ना आसमान में, उसको देख पाते हैं और ना जाने क्या क्या दिखता है ना. वो चीजें जो नेकेड आई से नहीं दिखती, काफी वंडर्स हम देख पाते हैं ना. सो टेलीस्कोप, इट्स वर्क इज टू मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू लुक एट डिस्टेंट थिंग्स एज फार एज स्टार्स एंड एवरीथिंग डन. सो टेलीस्कोप का काम ये है. अब देखो, टेलीस्कोप मैंने क्या नाम रखा पहले? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल ऐसा टेलीस्कोप जिसका यूज हम हेवनली बॉडीज को देखने के लिए करते हैं, जैसे स्टार्स, मून्स, गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग, राइट? सो दैट इज योर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एंड व्हाट डिफरेंस इट विल पुट, दैट आई विल डिस्कस as we will move ahead. Okay. So astronomical telescope का main consideration क्या है? This is very important topic. Okay, so keep your head here. Main consideration with astronomical telescope is its light gathering power and its resolution or resolving power. ठीक है. So light कहने का मतलब कि हमारे पास अगर टेलीस्कोप है, इसका लेंस ले लो ऐसा, स्टार क्या होते हैं? काफी दूर होते हैं, है ना. वो स्टार्स बल्कि है बट काफी दूर है. उससे जो लाइट आ रहे हैं वो लाइट इस लेंस पे पड़ेगा. ठीक है. अगर लेंस पे कम नंबर ऑफ रेज पड़ेंगे तो इस स्टार का इमेज जो बनेगा वो काफी डिम बनेगा, तो हमें स्टार से इसे दिखाई नहीं देगा. यानी कि टेलीस्कोप को ये करना है कि उसको स्टार से ज्यादा नंबर ऑफ लाइट को पहले गैदर करना है, तब इमेज बनानी है, सो दैट जो मुझे दिखाई दे वो ब्राइट दिखाई दे. ठीक है. सो मेन कंसिडरेशन विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर एंड इट्स रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर. अब देखो, रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर में का क्या मतलब है? वैसे स्टार्स काफी दूर दूर,
डन। सो काफी दूर होने का मतलब कि दो स्टार सपोज कर लो S1 है S2 है, मेरा इंटरेस्ट S1 में है, लेकिन सिंस ये काफी दूर है ना, S1 S2 मुझे अर्थ से काफी पास पास दिखेंगे, तो इन दोनों को अलग अलग देखना मतलब इन दोनों को रिजॉल्व करना, अलग अलग दिखाना मतलब रिजॉल्व करना, ठीक है। जैसे तुम हेडलाइट को देखते हो ना, जब गाड़ियां काफी दूर होती है तो फोर व्हीलर भी टू व्हीलर समझ आता है, दो हेडलाइट कैसा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे एक ही क्या है, एक ही तुम्हारा हेडलाइट है, डन। लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है क्लियर हो जाता है कि नहीं यार ये तो टू व्हीलर नहीं है, फोर व्हीलर था, है ना। सो दिस, जैसे देख लो ये दो हेडलाइट्स है सपोज, और तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ, ठीक है। सो ये तुम्हारे आंखों पे कितना एंगल बनाएगा, बहुत छोटा कुछ ऐसा, लेकिन तुम यहाँ खड़े हो गए, अब ये कितना एंगल बनाएगा, बड़ा बड़ा एंगल बनाएगा ना। तो अब तुम इसको क्लियरली देख पाओगे, जैसे जैसे गाड़ी पास आएगी, ये हेडलाइट किसका है, गाड़ी का है, ठीक है। सो जब हम किसी चीज से दूर होते हैं ना, तो उसको डिस्टिंक्टली अलग अलग देख पाना मुश्किल होता है, जैसे जैसे वो पास आता है दिख जाता है, लेकिन स्टार तो हमारे पास आएगा नहीं, दैट इज at fixed some far distance, right? So what we need to do, we need to have such a thing in our telescope कि वो अलग अलग जो पास पास स्टार्स हैं उसको अलग अलग दिखा सके, रिजॉल्व कर सके। So main consideration with telescope is what? Its light gathering power and its resolution और resolving power, और दोनों ही किन चीजों पे डिपेंड करेगा, resolving power is directly proportional to aperture of the lens, लेंस का अपर्चर, इसका अपर्चर ये होता है। सो रिजॉल्विंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डी होता है। यानी कि हमें टेलीस्कोप में लेंस ऐसा रखना होगा जिसका जिसका अपर्चर क्या हो, बड़ा हो, यानी कि हमारा टेलीस्कोप साइज में बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। An intensity of image is directly proportional to area of aperture of lens receiving the light, क्योंकि इस अपर्चर का जितना एरिया होगा वो अपर्चर उतना ज्यादा दूर से लाइट को गैदर करके इमेज बनाएगा, तो इमेज उतना ब्राइट होगा। एरिया ऑफ अपर्चर किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया अगर इसका निकालोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये डी है, सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डन, ऐसे याद रखो। तो टेलीस्कोप पे हम किस चीज से डील कर रहे हैं, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है टेलीस्कोप को कंस्ट्रक्ट करने में, मेन पॉइंट्स क्या दिमाग में रखनी है। पहला कि जो टेलीस्कोप है वो लाइट को सही से गैदर करे, उसके लिए इसका अपर्चर क्या होना चाहिए, अपर्चर का एरिया ज्यादा होना चाहिए, यानी कि डी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारा जो टेलीस्कोप है वो चीजों को रिजॉल्व कर सके, उसका रेजोल्यूशन पावर हाई हो, अगेन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद डी, directly related with D. Okay, this thing we will read in wave optics. Okay, so for now, let's now see the construction of astronomical telescope. This is objective and this is eyepiece. Objective का मतलब इसके आगे object होगा, so infinity. Object क्या है यहाँ पे? Heavenly bodies, right? So stars, moon, they are at infinite distance, right? So light will come from there. यानी कि light कहाँ से आ रहा है? Infinity से आ रहा है. सो इंफिनिटी से आता हुआ लाइट क्या होगा, किस पे फॉल करेगा, ऑब्जेक्टिव पे। और सिंस लाइट इंफिनिटी से आ रहा है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा क्या, फोकस पे बनेगा, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है। तो यहाँ पे इमेज जो बन रहा है वो किस पे बन रहा है, एट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, राइट। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, दिस लाइट विल आल्सो फॉल ऑन आईपीस, और आईपीस क्या करेगा, आईपीस इसका वर्चुअल इमेज बनाएगा, enlarged इमेज बनाना है, सो वर्चुअल इमेज बनाएगा, एंड अगेन वी विल सी दैट देयर, राइट। सो इट इज हैपनिंग लाइक दिस। सो टेलीस्कोप में इमेज कैसे कैसे बन रहा है देखो। अगर हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग स्टार को नेकेड आई से देखते हैं तो हमारा आई किधर होगा, ये बताओ। हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो डेफिनेटली आई पीस के सामने हमारा आई होगा, लेकिन अगर स्टार को नेकेड आई से देख रहे हैं तो यहाँ पे आई होगा। मतलब मैं स्टार को ऐसे देख रही हूँ, मेरे बीच में टेलीस्कोप नहीं है, यानी कि लाइट डायरेक्टली इंफिनिटी से आके कहाँ पहुंच रहा है, मेरे आई पे। सो दिस इज माई आई, राइट, डन। सो इफ यू आर लुकिंग एट स्टार्स विथ नेकेड आई, हाउ मच एंगल दिस विल मेक एट माई आई, तो उसके लिए देखो
यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अगर अगर ये वाला लेंस हमारा आई लेंस होता, अगर मैं नेकेड आई से देखूंगी तो ये हमारा आई लेंस होगा, ठीक है। सो ये हमारे आई लेंस पे कितना एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पे अल्फा बना रहा है। डन। सो एंगल फॉर्म्ड एट नेकेड आई बाय द ऑब्जेक्ट विल बी हाउ मच, अल्फा। और देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। सो tan अल्फा अगर तुम निकालोगे इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, तो कितना होगा tan अल्फा। जो इमेज बना है इसका हाइट h ले लो। सो tan अल्फा कितना लिखोगे, h बाई एफ, एफ नॉट, राइट। सो दिस इज tan अल्फा, यानी कि एंगल गेटिंग फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट नेकेड आई, ठीक है, tan अल्फा। नाउ हाउ मच एंगल विल गेट फॉर्म्ड एट आई इफ आई एम लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप। सो यहाँ पे आई है, ये टेलीस्कोप के थ्रू देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे लाइट डायरेक्टली यहाँ से आई तक नहीं पहुंचेगी, टेलीस्कोप जैसे उस पे फॉरवर्ड करेगा उस तरह से पहुंचेगा, यानी कि टेलीस्कोप के थ्रू लाइट होके कैसे पहुंच रहा है, ऐसे। तो ऐसे ये कितना एंगल हमारे आई पे बना रहा है, बीटा। डन। एंड फाइनल इमेज इज आल्सो गेटिंग फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, यू सी हियर। डन। सो टेलीस्कोप में हमें यही पढ़ना है कि फाइनल इमेज भी कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है। अब देखो tan बीटा कैसे, ये इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगा, जब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेकेंड लेंस के लिए भी क्या हो, उसके फोकल लेंथ के बराबर हो, यानी कि ये एफ ही होगा, है ना। और यहाँ पे देखो ये रे ऑफ लाइट इन इंफिनिटी को टेंड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ कट किया होगा, एफ ही पे, है ना। क्योंकि ray of light coming from infinity will cut principal axis at focus, right? We know this. So this is also Fe. अब tan बीटा अगर आप निकालोगे तो ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन से ट्रायंगल में जाना है हमें, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। सो इस ट्रायंगल में ये हाइट को हम h कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस विल बिकम Fe. सो tan बीटा कितना होगा, h by Fe. Now what will be the magnification? So angular magnification we have studied. Angular magnification क्या होता है, angle formed at aided eye. aided eye का मतलब वो आंख जो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चीजों को देख रहा है, यानी कि एंगल फॉर्म्ड एट आई व्हेन वी आर लुकिंग थ्रू टेलीस्कोप, यानी कि दैट इज बीटा, डिवाइडेड बाय एंगल फॉर्म्ड एट अनएडेड आई, नेकेड आई, दैट इज अल्फा। सो बीटा बाय अल्फा करना है, ठीक है। So that we need to write here. अब आप यहाँ पे प्रॉपर थिंग से देखते हैं, ठीक है। सो बीटा बाय अल्फा, h बाय एफ, h बाय एफ नॉट, सो एफ नॉट बाय व्हाट, एफ। दिस इज हैपनिंग हियर। सो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, एफ नॉट बाय एफ over it. And there is one more term that is called your tube length, ठीक है, in case of telescope. So what is tube length? Tube length is distance between objective and eyepiece. This is your tube length. In case of compound microscope also there is a term tube length. उसको कैसे define करते हैं, वहां पे बोलते हैं एफ नॉट और एफ ई के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर ट्यूब लेंथ। और अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे तो वहां भी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को क्या कह देते हैं, ट्यूब लेंथ कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज दिस नाउ ट्यूब लेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब एफ नॉट प्लस एफ ई, ओके। सो दिस इज डन। Now, this is a question, a very simple question. So you all do it and let me know. I'm just giving you 30 seconds because you don't require more than that. What will be the answer? Answer will be D. Because why we take, हम लोग क्यों लेते हैं ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर? Why we take this as like ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या लेते हैं, अपर्चर काफी बड़ा लेते हैं ना, दैट इज व्हाई इट हैज लार्ज फोकल लेंथ आल्सो। सो व्हाई वी टेक इट, सो दैट कि जो ये जो
ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को गैदर करे, क्यों? so that it can make a bright image. So large aperture contributes to quality and visibility. Quality कहने का मतलब resolving power, यानी कि एक स्टार को एक स्टार की तरह ही दिखाए, ना कि दो स्टार को एक साथ दिखा दे. Done? So again A को ही कहने का तरीका हुआ B and C. So all of the above, right? Correct answer. Now what is the problem with refracting telescope? What is refracting telescope? Astronomical telescope, जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया. रिफ्रैक्टिंग क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था वो भी एक लेंस था, आईपीस था, वो भी एक क्या था? लेंस था. ठीक है. सो दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, क्योंकि वॉट एवर लाइट इज कमिंग इज गेटिंग रिफ्रैक्टेड, अगेन रिफ्रैक्टेड. डन. ऐसे ही हो रहा है. सो लाइट थ्रू आउट रिफ्रैक्ट हो रहा है. डन. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. What is the problem with it? सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारा क्या है? बल्कीनेस. क्यों बल्की होगा ये? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसको ऐसे बनाना है कि उसके ऑब्जेक्टिव का अपर्चर क्या हो? लार्ज हो. और ये लेंस किससे बना होता है? ग्लास मटेरियल से बना होता है. अगर ये काफी बड़ा है तो हेवी हो जाएगा, और अगर हेवी होगा तो हैंडी नहीं होगा. So bulkiness. ठीक है. Now there are two other terms, chromatic aberration and spherical aberration. What is chromatic aberration and what is this? That we will discuss one by one. So what is chromatic aberration? अब देखो इसके बारे में हमने बहुत चीजें पढ़ चुकी हैं. So हमने पढ़ा है. Just we need to explain. So when suppose this is objective lens of the refracting telescope, that is astronomical telescope here. So light is coming from infinity. What sort of light is coming? White light. White light means it has components of all those colors. Vip geo, है ना? So, excuse me. Okay, I have cold actually. So it has all components of colors. So it will have light of different wavelength, है ना? और हमने एक चीज और पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के स्क्वायर का. We have studied Cauchy's formula, right? ठीक है. So Cauchy's formula के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस का वो हर कलर के लिए अलग अलग होगा. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है हर कलर के लिए तो जो हर कलर का रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ डिविएशन होगा, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी सो मच. इसका मतलब क्या होगा कि रेड लाइट जो है वो सब जैसे देखो व्हाइट लाइट का अगर लेंस नहीं होता तो व्हाइट लाइट ऐसे जाता. ठीक है. So because of refraction, different colors of light will get deviated by different angles. Red सबसे कम deviate होता है, blue सबसे ज्यादा होता है. We have discussed it in dispersion. So यहाँ पे भी same thing होगा. अगर ऐसा हो रहा है तो red light principal axis को कहीं और कट करेगा, ब्लू ग्रीन लाइट कहीं और कट करेगा, ब्लू लाइट कहीं और कट करेगा. यानी कि फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट, फोकल लेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, हियर यू सी फोकल लेंथ ऑफ ब्लू लाइट, all these are different. So focal length is different for different colors. And if this is happening, then जो हमने जिस स्टार का हमने इमेज बनाया है वो इमेज फोकल लेंथ पे बन रहा था. सो वो इमेज यहाँ भी बनता हुआ दिखेगा, यहाँ भी. सो इस एरिया में इमेज बनेगा, ना कि पर्टिकुलर लोकेशन पे बनेगा, एक एरिया में बनेगा. और अगर इमेज एक एरिया में बनता है तो कंफ्यूजन होगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन. कलर की वजह से जो एबरेशन आ रहा है, जो गड़बड़ी हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिक एबरेशन. एंड इन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देयर इज लेंस, और अगर लेंस होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो ये एबरेशन होगा. क्योंकि डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट क्या यूज, different deviation angle होगा, different focal length होगा. So image will get spread in an area, not sharp image will get formed, and that will create confusion. So that's the problem. Now what is spherical aberration? So chromatic aberration तो हुआ, एक और प्रॉब्लम है spherical aberration का. वो क्या है? जैसे तुम लेंस को बनाते हो, यहाँ पे देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस डायग्राम को. आप लेंस बनाए,
सपोज कर लो मैंने ऐसा लेंस कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। सो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले लो, इस पॉइंट को, इस मैं 2 पॉइंट को ले रही हूँ, ठीक है। सो इस पॉइंट को नॉर्मल ये होगा, इस पॉइंट को नॉर्मल ये होगा। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी and it is falling on the lens. So light coming from infinity falling on lens. Can you see here, angle of incidence is different for these two parallel beams of light. Why? Because curvature of lens is what has certain finite radius of curvature, and because of that incidence angle will be different if light is, and that difference will be more noticeable if one light is taken at the top and another light is taken somewhere at the middle. Okay, so light is falling from infinity, it will fall all over the aperture. Done. So this angle will be different, and if this angle is different, that is angle of incidence. According to Snell's law, mu sin I, mu air sin I is equal to mu lens sin R, and R is going to be different. And if R is going to be different, what will happen? It will meet principal axis, or it will cut principal axis at different points, right? क्योंकि angle of refraction भी क्या होगा, different होगा, because I is different, and because of that we won't get a single focus. Again यहाँ भी problem हुई है, single focus नहीं मिलेगा. Done. And this aberration will not only happen in the case of lenses, also in the case of mirror it will happen. क्योंकि mirror का भी curvature कुछ ऐसा होता है जिसका एक finite radius of curvature होता है. So we will get different focus. And if we are getting different focus, as we have seen in the previous case, साफ focus हमें नहीं मिलेगा, जैसा कि हम ideally assume कर लेते हैं. That is just an assumption, right? Focus will be distributed in an area. And so image in this case will be distributed in an area. So this is also a problem, right? Done. So this is chromatic aberration will happen only in lens, but sorry, this is also termed as, this is a spherical aberration, and this is also a spherical aberration. So a spherical aberration will happen both in lens and mirror. Done. So how we can reduce it? Chromatic aberration को reduce करने का कोई तरीका नहीं है. We can't. To the long we are using lens, there will be a chromatic aberration. लेकिन spherical aberration को remove करने के लिए हम क्या use कर सकते हैं? Parabolic mirror. Parabolic mirror जो होता है, इस तरह के shape का जो mirror होगा, ऐसे कुछ something like, यहाँ पे ये जो eye का change होने का chance है वो काफी कम होता है, negligible होता है. So we can replace such mirror with parabolic mirror to reduce a spherical aberration. So इसलिए हमने एक और टेलीस्कोप डिजाइन किया, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और हमारे एनसीईआरटी में जो पढ़ना है that is कैसिग्रेन टेलीस्कोप, ठीक है. So हमने क्या किया ना, हमने जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव था ये, ठीक है, और ये हमारा क्या था, आईपीस था. डन. ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा बड़ा होगा, सो प्लीज माइंड इट हियर. डन. सो यहाँ पे देखो, पहले स्टार का इमेज कौन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है. और अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर इमेज नहीं बनाया है तो आईपीस किसका इमेज बना रहा है, जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया उसी को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके आईपीस इमेज बना रहा है. तो अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर इमेज नहीं बनाया है तो आईपीस कैसे क्लियर इमेज बनाएगा, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट जो मिल रहा है वही क्लियर नहीं है. सो हाउ विल इट फॉर्म अ क्लियर इमेज? सो वी नीड टू डू मोर विथ ऑब्जेक्टिव थिंग. डन. सो हमने कैसिग्रेन टेलीस्कोप में क्या किया, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या यूज किया, लेंस नहीं मिरर यूज किया, ठीक है, पैराबोलिक मिरर. सो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्टिव की जगह, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह क्या यूज किया है हमने, ऑब्जेक्टिव मिरर यूज किया. सो जो भी लाइट इंफिनिटी से आ रहा है वो क्या हो रहा है, इस मिरर पे फॉल करेगा और वो फोकल लेंथ पे इमेज बनाएगा, पैराबोलिक मिरर के फोकल लेंथ पे इमेज बनाएगा. ये लाइट को लाइक escape करने का चांस है कि वो आईपीस पे, जैसे मेरा आई तो यहाँ है, सो आईपीस को भी इमेज बनाना चाहिए, उसके लिए लाइट इस टनल में जाना चाहिए, ठीक है. ऑब्जेक्टिव के बाद लाइट कहाँ पहुंचना चाहिए, आईपीस तक. सो यहाँ जो इमेज बना ऑब्जेक्टिव से, इसको ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, मैं बस कंस्ट्रक्शन समझा देती हूँ. सो ऑब्जेक्टिव मिरर जो इमेज बनाया, ये ब्राइट इमेज है. अगेन इस ब्राइट इमेज का अगेन आईपीस ब्राइट इमेज बनाए, उसके लिए प्रॉपर लाइट इस टनल में जाना चाहिए.
सारे लाइट रिफ्लेक्ट करके मिरर से, ऑब्जेक्टिव मिरर से अगर स्केप कर जाता है बाहर तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमने एक सेकेंडरी मिरर यूज किया है यहाँ पे, दैट इज योर कनकेव मिरर हियर। सो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा इन द टनल, एंड देन आईपीस विल फॉर्म इमेज। सो हमने ऑब्जेक्टिव मिरर यूज किया, क्रोमैटिक एबरेशन नहीं है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही तो, अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर इमेज बनाता है तो आईपीस क्लियर बना देगा, देन क्रोमैटिक एबरेशन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर यूज किया। पैराबोलिक है, स्फेरिकल एबरेशन नहीं है। So if objective is forming a clear image, eyepiece will definitely form a clear image. There's no issue with that, right? So this is called Cassegrain telescope, and this is what you have to read. ये बोर्ड में भी आया है एक दो बार। So देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ से सारे इनको हटाती हूँ, देखो कुछ ऐसा हो रहा है। Done. It will get formed like this. So यहाँ पे eyepiece पे जो image लाइट जो आता हुआ दिखेगा वो कहीं ऐसे, अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे ना, इसको लाइक यू कैन एक्सटेंड इट एंड चेक। बट देखो ये डायग्राम जो है वो काफी ज्यादा समझाने के हिसाब से बनाया हुआ है, रादर देन अ वेरी नीट एक्यूरेट डायग्राम फॉर इमेज थिंग। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिरर कहाँ इमेज बना रहा है क्लियरली दिखाया नहीं है। सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हमें इसका रे डायग्राम पढ़ना भी नहीं है, वी जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। सो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर है, मिरर दो है, और दोनों ही तुम्हारा एक देखो यहाँ पे ये जो मिरर है ऑब्जेक्टिव मिरर है, एंड दिस इज योर व्हाट सॉर्ट ऑफ मिरर, सेकेंडरी मिरर। डन, क्लियर है? एंड दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर किसको कहते हो यार, मैं बार बार भूल जाती हूँ। दिस मिरर इज योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस मिरर, one mirror is this and this mirror is your this. Okay, so you just decide now. I am very confused with these things, I'm sorry. ठीक है, so another is your terrestrial telescope. इसको पढ़ना नहीं है ज्यादा, बस मैं ये बता देती हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का काम क्या है, दूर की चीजों को देखना। दूर मतलब कितना दूर, हेवनली बॉडीज, मिल्की वेज, स्टार्स, मून्स, लाइक दैट। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का काम क्या है, टेरेस्ट्रियल नाम से ही क्लियर है, लैंडस्केप को देखने के लिए। अगर तुम कहीं, जैसे मैं पहाड़ों में गई हूँ, मुझे पहाड़ के टॉप पे क्या है क्लियरली देखना है, तो मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप नहीं यूज करूंगी, टेरेस्ट्रियल यूज करूंगी। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस हियर, एक तो फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है, एंड यहाँ पे 3 लेंसेज की जरूरत होती है। 3 लेंस क्यों? क्योंकि देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, अगर मैं पुराने वाले डायग्राम में, मैं बार बार इसको छोटा बना रही हूँ, that should not happen. Okay, so first diagram में देखो स्टार यहाँ था, इसका यहाँ पे इमेज बना, ये इमेज कैसा बना था, अगर तुम ऐसे बनाओगे तो रियल एंड इन्वर्टेड था, और इसका इमेज फिर कैसा बना था, वर्चुअल बना था कहीं इधर बहुत दूर पे, ऐसा। सो स्टार का फाइनल इमेज कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो स्टार का इन्वर्टेड हो, अपराइट हो, डजंट मैटर, क्योंकि वो गोल है। अब गोल चीज को तुम अपराइट और अपराइट, लाइक अप द प्रिंसिपल एक्सिस, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस हमें सिर्फ स्टार को देखना है, वो कैसा दिख रहा है, लाइक स्टार को देख पाना है, उसका अपीयरेंस। जैसे पेड़ है, पेड़ को अगर तुम उल्टा देखोगे तो वो उल्टा दिखेगा, है ना, पत्तियां नीचे दिख रही है, जड़ें ऊपर दिख रही है, दैट्स वेरी अबनॉर्मल। लेकिन स्टार के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फाइनल इमेज अगर इन्वर्टेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम लैंडस्केप देख रहे हैं तो पहाड़ ऊपर, पिक ऊपर ही देखना चाहिए, पिक नीचे, सारी चीजें ऊपर दिखे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। डन, तो हमें इसलिए यहाँ पे 3 लेंस यूज करना है। जो थर्ड लेंस होगा वो क्या करेगा, पहला जो इमेज बना है इसको पहले अपराइट कर देगा, एंड देन उस अपराइट इमेज का, अपराइट इमेज अगेन कौन बनाएगा, आईपीस। जैसे मैं यहाँ दिखाती हूँ तुम लोगों को, क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये लेंस 1 है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, काफी दूर है, लैंडस्केप देख रहे, दूर है, फोकस पे बना। अब देखो ये लेंस 2 क्या किया, इसका वर्चुअल इमेज बनाया, तो ऐसा बन गया, और इस वर्चुअल सॉरी रियल इमेज बनाया। लेंस 2 क्या किया, रियल इमेज बनाया, तो इन्वर्टेड बनाएगा। तो ये था डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका इन्वर्टेड इमेज क्या हो जाएगा, अप द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इससे लाइट जो है
थर्ड लेंस अगेन इमेज बनाएगा वर्चुअल कहीं दूर, सो दैट विल बी अगेन अपराइट इटसेल्फ. सो इमेज क्या, फाइनल इमेज कैसा दिख रहा है, अपराइट. ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने एक इन्वर्टिंग लेंस यूज किया. दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग लेंस. ये मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सो इन बोर्ड इट माइट कम. ठीक है, एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, दैट इज विथ इंस्ट्रूमेंट. इस तरह से हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म होता है. नेक्स्ट की क्लास में वी विल डिस्कस what is that called, semiconductor. Okay, so stay safe, stay healthy, keep enjoying. We will meet again for the next class. Bye bye.